Respect women was taught by my teacher. And yes, I respect them. If women is in problem, she calls 1091. But do any of you know any special number which we men can dial when faced with problem? Oh sorry, I forgot. मर्द को दर्द नहीं होता. Then why we say that? We have same metabolism, same blood, and if I guess correct, we are grown in the same womb. Then yes, I can say we also face depression, loneliness, fear, teared, harassed, and no one is there to complain about. A frosty good evening and Merry Christmas to one and all present here. आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि एक साथ काफी चीजें एक साथ देखने को मिल रही, जैसा कि आज हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, जो कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और उसी के साथ आज हम सबके बीच ऐसे महान हस्ती जो कि प्रेजेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, चेयरपर्सन कल्चरल काउंसिल भी हैं, जो कि आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अनूप लाथर सर का, जो कि आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस एंड योर प्रेजेंस मीन अ लॉट टू मी एंड श्योरली आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिमार्क्स आफ्टर माय टॉक। थैंक यू सो मच सर। और उसी के साथ उपस्थित सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बिना उनके ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। तो थैंक यू सो मच ऑल। Myself Amit Kumar, and currently I am the executive member of Saks Society and got a golden opportunity to be the speaker of 98th GSTS talk on this virtual platform to express my thoughts on my topic, the silence of a gentleman. So here some of the objectives which I chosen for my topic. So firstly, how the representation of masculinity in mythology and history. Second, a thorough discussion on the unrealistic and stereotypical portrayal of men in society, media and culture, and the challenges men thus face. Third, why are laws on men's rights not enough? Fourth, discussing cases on the ground of cruelty against male gender using statistical method. And at last, my personal solutions to restrict the crimes and improve their status. So let's move to the talk. Before moving to my first objective, let me introduce why I chose this topic. As we know that the Constitution is supreme and Article 14 says that equality before law and equal protection of law. तो मुझे कहीं ना कहीं इस लाइन में लगता है कि जो इक्वलिटी वर्ड की बात की जा रही है, ये समाज में आज भी लैग कर रही है। हम फीमेल राइट, फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो बात करते हैं, और जहां तक जरूरत भी है, क्योंकि आज के समाज में बढ़ती समस्याएं जैसे कि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, उनको रोकने के लिए महिलाओं को तो जागरूक कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पुरुष की तरफ बढ़ते अन्याय को देखकर हमें मेन के राइट, मेन की प्रॉब्लम्स को यूं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? और जैसे समाज कहता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मेन डोंट क्राई, बॉयज डोंट प्ले विद डॉल्स, बट अगर हम इसे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग देखें तो इट्स जस्ट अ मिथ. Men too cry and men too faced with problems, just like socially, mentally, physically, as well as sexually. If everyone is equal in the eye of law and thus deserves to be treated equally. Let's move to our first objective. How the representation of masculinity in mythology and history. कि किस तरीके से सोसाइटी में मेन को पोर्ट्रे किया जाता था. Here in the first picture, which I shown in my PPT, the picture from the collection of the Paul Getty Museum. Here Telemachus is shown as an example of tenderness and love. Here artist implies that these characteristics are masculine. Eucharis is holding on Telemachus, which make Telemachus appears to be a protector. Here Telemachus wears blue and Eucharis wears pink. These are classic gender specific color. Telemachus also holds a spear, which is a symbol of his role as protector and warrior. वहीं पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो पिक्चर है that depict men as a muscled and strong. This picture is the collection of Museum Giulio Romero de Torres. In this picture, the artist Michelangelo depict
men as muscled and strong. It brings to mind the common assumption that men should be closed off to emotions and things that are considered to be more feminine. If we trace from history, जो हमारा अर्ली वैदिक टाइम है, हम देखते हैं गॉड को मस्कुलिन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था और आज भी किया जाता है, जैसे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड अग्नि, इन सभी को इनकी मस्कुलिनिटी पर ज्यादा फोकस किया गया। इन्हीं थॉट्स की वजह से हमारे माइंड डीप रूटेड है कि मेन को जो पोर्ट्रे किया जाना चाहिए वो एज ए प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर, प्रोवाइडर की तरह देखें। अब उसी के साथ हम कुछ देखते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स की, कि हाउ वेस्टर्न फिलोसोफर्स डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मैन इज द नोवर एंड possessor of an immortal soul. A good portion of philosophers believe that the body is mortal and the soul is immortal. Aristotle viewed that man as a rational and a social animal. Man is not the center of the universe. He is only part of it. However, Socrates gave the idea that man's body comes from his world of matter, but his reasons come from the universal reason of the world. Socrates is more concerned in men as social, moral being. However, Martin Buber in his study of men, which was referred to as philosophical anthropology, and he considered a unique area of study, since it takes men as the object as well as the object of knowledge. अब हम बात करते हैं कुछ स्टीरियोटाइप्स की, कि हाउ अनरियलिस्टिक इज द पोर्ट्रे ऑफ मेन इन द मीडिया एंड द कल्चर, कि हमारा कल्चर, हमारा मीडिया मेन को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी के अंदर। Men are portrayed as tired of seeing dumb and deadbeat dads, sick of every man on TV being a sex-obsessed womanizer. Men are often seen as incompetent, misogynistic, brutish slob who only think about sex, beer and वहीं पे अदर साइड हम देखते हैं मैन को, men depict as superhero, the man who is financially successful, in perfect shape, rich, handsome, brilliant, एथलेटिक। इसको हम कुछ एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो मैन को शुरू से ही एज ए प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर दिखाया जा रहा है, और हमारा समाज हमें यह भी दर्शाता है कि जो पुरुष समाज है वह ताकतवर है, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। इससे हम कुछ महाकाव्यों के साथ देखते हैं। आप सभी ने रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों को सुना या देखा जरूर होगा। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह रामायण में जो रावण था और उसकी बहन सूर्पनखा के कारण उसके साम्राज्य का पतन हुआ। इंडिया, और वी कैन कॉल अवर मदरलैंड, which has very vast and rich culture. We have oppressed from centuries from foreign invaders. But let's go back and have a look at the history our Vedas and Puranas tells us. Starting from Lord Ramayuk, we had God and devils. Here devils means Ravan. Both had great characters, and even the devil was the great worshipper of Lord Shiva. Great scholars in Ayurvedic medicine. He was the person who invented Arthashastra. The book Arthashastra reveals this truth to the present world. Let's see what caused the decline of this great ruler. It was just the lust of a woman who was a sister and gave him half the information that some guy has cut her nose and ears without telling him that it was she who misbehaved with the guy and forced him to do the act, which if seen in today's context is a perfect example of fake case, and the devil guy is the example of government, who just on the mere allegations without even giving a guy to chance to prove the innocence. This led to the downfall of his kingdom. वहीं पे अगर हम देखें महाभारत काल की, कि हाउ द क्रूएलिटी डन बाय मदर ऑन हिज न्यू बोर्न चाइल्ड इज स्मार्टली डाउनप्लेड एज एन एक्ट ऑफ हेल्पलेसनेस बाय एन अनमैरिड वीमेन. शी कुड गिव दिस चाइल्ड टू एनीबडी इन हिज किंगडम, बट नो, शी गिव दिस चाइल्ड टू रिवर. Yes, I am talking about Karn. But the luck of the child, he survived and became the greatest warrior of that yuga on his struggle and willpower alone. These two incidences shows the naked truth of the society, how men facing injustice and atrocities of the women. They can't even speak for themselves because society behave as
only men is the root cause of all evils. आप सभी ने मूवीज तो देखी ही होंगी, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो मैन है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्ले करता है, उसको अपने इमोशंस को ज्यादातर छुपा के ही रखने होते हैं। आप सभी ने हाल ही में एक मूवी जो कि डॉक्टर जी, जिसमें आयुष्मान खुराना जो कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे गए, उस मूवी में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जेंडर के बेसिस पर प्रोफेशंस को डिवाइड किया जाता है। बचपन से मैं लड़का हूं, मुझे यह जताया जाता है, आंसुओं को छलकने से पहले ही पोंछ दिया जाता है, तुम लड़के हो नहीं रो सकते दिल खोलकर एक लड़की की तरह, छुपा के सारे गम उसे मुस्कुराना सिखाया जाता है। लेट्स मूव हाउ सोसाइटी स्नैच इमोशंस फ्रॉम मेन बिगिनिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। हम इसे एक क्लिप के साथ देखते हैं। लड़के रोते नहीं हैं। Every boy man must have heard this phrase for numerous times in their lives. I wonder what psychological impact does it have on men who have been repeatedly told since their childhood that they are not supposed to cry just because they are of a particular gender. When a little boy is stopped from crying after he get hurt, you and I cannot even imagine the impact it has on the boy's psychology and mindset. He grows up with the belief that he is not supposed to cry in any situation. How worse is the situation in his life? Not crying slowly becomes not showing emotions of any kind to anyone. The strength which society wants to develop come at the cost of sacrificing the ability to show emotions. एक स्टडी जो कि जामा इंटरनल मेडिसिन ने की, उन्होंने पाया कि थ्रू आउट द लाइफ men were about twice as likely as women to have heart attack. वहीं पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इज लोअर देन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वीमेन. बट माय क्वेश्चन इज, who is responsible for this? Is it the same person around who the boys grows up? Is it the family and the society? Overall should take the blame of making a man devoid of the ability to feel emotions. I would also like to connect this problem to the overall patriarchal culture of the society. Now I know many of you would argue that how is patriarchy responsible for it? Does it mean the subjugation of women at the hand of men who hold the position of authority in the family and the society? But I do think in the present circumstances, patriarchy needs a broader definition. It is not just the oppression of women by men, but it is also the emotional subjugation of men, which prevent them from feeling and expressing their emotions. This subjugation is detrimental for men, but also for people around them. Because when men don't feel their own emotions, they are in no position to understand their loved ones and people around them, which led to other sets of problems. जले दीप जब घर में एक कुलदीप हुआ, तुम लड़के हो बचपन से ये सार दिया, कुछ हो जाए गलती तो मटका उस पर फोड़ दिया, वो लड़का था तो बिना सुने उसे दोष दिया, छूट गए सब बाइज्जत, वो लड़का था तो सजा का हकदार हुआ. With this, what are the problems faced by men in society? सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने दिखाई है कि men are considered as a provider of comfort and security. As we know that patriarchy in India prevail in large context. Atrocities against women are common in our nation. But when we look at the larger picture, it is not just women who suffer here. Men in India who have their own battles to fight. क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, society judge a man by its financial condition. Society sometimes crudely asks questions like, तुम कितना कमाते हो, कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम अपने बच्चे को किस तरह देखभाल करते हो, तुम अपनी बेटी की शादी किस तरह करोगे. एक मैन सोसाइटी के अंदर इन्हीं थॉट्स के साथ घिरा हुआ होता है. इन्हीं रीजंस की वजह से हम देखते हैं कि मैन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से मरता है. एक स्टडी जो कि पर्ड्यू एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की,
and they found that how gender stereotypes affect the people's health in different ways. Men are more likely to be stereotyped as violent, which is often linked to something like alcohol use, while women are more likely to be stereotyped as dependent, which is more closely linked to issues like depression. वहीं पर एक रिसर्च जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट की, and they found that 30.6% of men have suffered from depression in their lifetime. Next, parental pressure isn't just confined to women when it comes to get married. हम जिस तरह समाज में देखते हैं ना कि एक विमेन को उसकी शादी के लिए प्रेशर किया जाता है और साथ में शादी के बाद बच्चे करने के लिए, उसी तरह एक पुरुष भी काफी ऐसी चुनौतियों का सामना करता है कि एक पुरुष को क्लास 12 के आने से पहले ही घर समाज उस पर ऐसा प्रेशर डालना शुरू कर देता है कि अगर आपके पास अच्छी नौकरी नहीं होगी तो समाज में आपको इज्जत नहीं दी जाएगी। मैन को उसके फाइनेंशियल स्टेटस से जज कर दिया जाता है और समाज में हम अक्सर देखते हैं कि एक फैमिली में अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कमा रहे हैं और फिर भी अगर अनस्टेबिलिटी आती है तो समाज सिर्फ पुरुष जाति को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है। नॉट ऑल डाउरी केसेस दैट आर फाइल्ड अगेंस्ट मेन आर ट्रू। अगर इसे हम एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो एन एवरेज अबाउट 1 lakh केसेस आर फाइल्ड अंडर सेक्शन 498 एनुअली। The rate of conviction where the accusation has proven varied between 20% in 2011 and 14% in 2015. The conviction rate under all IPC section was 46% in 2015, according to men. This gap in conviction rate is the proof that a large number of false cases were filed under section 498A annually. वहीं पे इसे अगर हम एकेडमिक्स में देखें तो मेन को पीयर प्रेशर और सोसाइटल स्टेटस की वजह से दिखाया जाता है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आप सोसाइटी में तो एक अच्छा स्टेटस पाते हैं, और वहीं पे अगर आप ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इनकम्पिटेंट की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। एक डाटा जो कि यूआईएस ने 2017 में कंडक्ट किया, एंड दे फाउंड दैट less than 30% of the world's researchers are women. Women make up 23% of those in core STEM occupation in the UK and 24% of those working in core STEM industries. अभी इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ में एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था एंड आई एम ऑल्सो द हार्ट पेशेंट, तो मुझे कभी कभी एब्रप्टली पेन होने लगता है, और उस दिन भी सेम केस था। तो मैंने वहां पर एक लेडी जो बैठी थी, मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की। मैंने कहा, मैम कैन आई सिट हियर? तो लेडी डिनाई एंड टोल्ड मी दैट तुम बहाने मार रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लड़की देखी नहीं, तुमने ऐसा शुरू कर दिया। एंड एट दैट डे आई डिडंट इवन गेट अ सीट। तो मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वी मेन ऑल्सो वांट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्पेशल केसेस? If everyone is equal in the eye of law and thus deserves to be treated equally, then the stereotype attitude towards masculine gender need to change. Men are not supposed to be weak, but might fall weak at some point of time. They need listener too. They cannot be strong all the time, and it is not that all the wrong done in a society is done by men. Societies sometimes need to support a man as they support a woman when it comes to get justice. Gender equality means equality for all, not just for a woman. तो क्यों हर बार उसे पहले समझाया जाता है? जो गलती उसकी नहीं, फिर सजा से क्यों डराया जाता है? कई बार लड़कों को बिना बात के पिटते हुए भी देखा है। जो कहते थे तुम लड़के हो, रोना मत, मैंने उन्हें मौन खड़े तब देखा है। With this, I am moving to my next objective: why laws on men's right not enough. If men and women fall under the same category of human being, both men and women belong to the same species. Therefore, according to this logic, human rights should include the right of men as well as women. But some laws in India as well as in other countries do not do so. अब हम सबसे पहले अपने पहले लॉ की बात करें तो वो जो कि बहुत फेमिलियर है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। The domestic violence law in India do not recognize that men can be the victim of domestic violence.
Domestic violence is usually viewed by the society as something done by the husband against wives. But the harsh reality remains that even wives commit act of domestic violence. Wait. Act of domestic violence against their husband. इसको हम एक केस के साथ देखते हैं। 2020 में कोलकाता में एक पत्नी का अपने पति को पीटने का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं पर एक एनजीओ जो कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने कहा कि अप्रैल 2020 के दौरान 1774 पुरुष अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उनके पास पहुंचे। ऐसे कई मामले जिससे पुरुष के साथ हो रहे अन्याय को रिपोर्ट में नहीं लाया जाता। भारत में अभी भी ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लगा सके कि घरेलू हिंसा के शिकार के पुरुष की कितनी तादाद है। वहीं पर कुछ एनजीओ जैसे सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन, माई नेशन फाउंडेशन जैसे एनजीओ के द्वारा ये बात सामने आई है कि भारत में 90% से ज्यादा पति 3 साल की रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना कर चुके होते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पुरुष ने जब इस तरह की शिकायतें पुलिस में या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और शिकायत करने वालों पुरुषों को हंसी का पात्र बना दिया गया। There are many more laws like the gender-wise rape law in India, child custody law and visitation law work against men. So what need to be done to change the situation? First, all cases should not be covered under one spear. There should be a differentiated approach so that justice should be gender neutral. And it would naturally mean that men would also get a chance at receiving justice. Besides, once these laws are gender neutral, it would also mean that they won't get misused by anyone for their own selfish benefits. This would save money and time for the judiciary also. पल भर में जाती है जिंदगी, रात रात में ईमान बदल जाते हैं। सवेरा होता है सबके लिए, पर इज्जत और सम्मान कुछ के चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद सब हो जाता है सही, पर जख्मों के निशान रह जाते हैं। So with this, my next objective is some of the cases on the ground of cruelty against male gender using statistical method. तो सबसे पहले जो मैंने केस लिया है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो लखनऊ में हुआ था 12 विरवा चौराहे पर। इसको हम एक क्लिप के साथ देखते हैं। जैसा कि आप सबने देखा इस केस के अंदर कि किस तरीके से एक लड़की ने एक चौराहे पर एक कैब ड्राइवर को मारा, जबकि बाद में इस बात का खुलासा भी हुआ कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। वहीं पे अगर हम दूसरे केस को हाईलाइट करें जो कि एक मुंबई में हुआ, जिसमें कि एक महिला ने एक पुलिस कांस्टेबल को बीच रोड पर पीटा। कारण सिर्फ इतना था कि पुलिस वाले ने महिला को रोककर हेलमेट न लगाने के कारण चालान की भरपाई के लिए कहा। इसको भी हम क्लिप के साथ देखते हैं। आप सभी ने 2015 सरबजीत वर्सेस जसलीन कौर को केस को तो सुना ही होगा कि किस तरह एक व्यक्ति को रातों रात दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया। आदमी की असीमिता तब खतरे में आती है जब एक कैब ड्राइवर पर प्रदर्शनी नामक लड़की उसका फोन तोड़ देती है और उस पर हाथ उठाती है, जबकि वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। अंत में जब कैब ड्राइवर ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगा, तब उस लड़की के पास सिर्फ एक नोटिस पहुंचाया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में पुलिस व्यवस्था दोनों लिंग के प्रति समान बर्ताव रखती है? वहीं पर कोर्ट की तरफ देखें तो जहां सरबजीत नाम के लड़के को रातों रात दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया जाता है और जब उसकी बरी होती है 4-5 साल बाद, तब वह दोषी नहीं पाया जाता। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या उसके जीवन का, उसके भविष्य का या उसके आने वाले कल का
किसी के पास कोई जवाब है? हमारी और आपकी दुनिया में सिर्फ यही 2-3 केस नहीं, देयर आर मेनी मोर केसेस आर हिडन ऑफ सोसाइटी, जस्ट एज द बेंगलुरु जोमेटो केस where the girl played the victim card, but in return she does all just to get free food, but eventually the man has to suffer a lot. I don't say it's a girl problem, but it's the society that has to understand the men's problem and has to taken for importance, and justice should not be delayed. अब इन्हीं केसेस के साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स डाटा को भी देखते हैं कि हाउ मेन फेस चैलेंजेस इन सोसाइटी। हम 2021 की एनसीआरबी रिपोर्ट डाटा को देखें, वी फाउंड दैट ऑल ओवर इंडिया द टोटल नंबर ऑफ सुसाइड इज 1,64,033, जिसमें मेल रेशियो की बात करें तो 72.5% और फीमेल रेशियो की बात करें तो 27.4%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स ज्यादा फीमेल जेंडर से। इसको अगर हम कंपैरिजन से देखें तो 2020 एनसीआरबी रिपोर्ट डाटा से कंपेयर करें तो टोटल नंबर ऑफ सुसाइड इज 1,53,052 केसेस, और वहीं पर अकेले 1,08,532 अकेले मेल जेंडर थे। वहीं पर अगर से परसेंटेज की बेसिस पर देखते हैं तो मेल का 70.9% और फीमेल का 29.1% है, जो कि कंपैरिजन से 2% ज्यादा है 2021 के डाटा से। एक सर्वे की बात करें जो कि इंडियन गवर्नमेंट 2007 ने कंडक्ट किया था, they found that children who reported experiencing several sexual abuse including rape or sodomy, in that they found that 57.3% were boys and 42.7% were girls. वहीं पर एक सर्वे जो कि कंडक्ट किया सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन एंड माई नेशन फाउंडेशन ने अप्रैल 2005 एंड अप्रैल 2015 के बीच को लेकर, इन दैट सर्वे ऑलमोस्ट 1 lakh men were that 1 year over the internet, from which they found that about 98.2% of men faced serious domestic violence from their wives and in-laws. इसको अगर हम परसेंटेज में कैटेगराइज करें, then 34.3% of men were affected by economic violence, 28.6% of men were affected by physical violence, 27.5% men were affected by emotional violence, and 20.4% of men were affected by sexual violence. According to Men's Welfare NGO Right, they found that 1.18 crore men are missing in National Family Health Survey 5 report compared to National Family Health Survey 4 report. And they raised that authority have again ignored domestic violence against men, which they had committed to include in the report. हर लड़का बुरा हो ये जरूरी तो नहीं, हर गलती उसकी हो ये कहीं लिखा तो नहीं। कहते हैं कि समान है लड़का लड़की हर जगह, पर कई जगह समानता तो नजर आती तो नहीं। With this, my personal solutions to restrict the crimes and improve their status. आज के समाज में बढ़ रहे पुरुषों के उत्पीड़न को अगर देखें तो उनको रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि जो जेंडर वॉइस लॉ है उनको हम इरेडिकेट करके जेंडर न्यूट्रल लॉ को इंप्लीमेंट करें, जिससे बोथ जेंडर कैन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लॉ। वहीं पे अगर दूसरी बात करें, जस्ट लाइक सेपरेट कोर्ट फॉर वीमेन, जिसे महिला अदालत बोलते हैं, a separate court should be made for men too, जिससे वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सके। तीसरी अगर बात करें, अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन इन द फॉर्म ऑफ कंपेनियन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स, इससे कि लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो सके, लोगों को पता चल सके कि लोग भी जो पुरुष है वो भी उत्पीड़न से जीवन काट रहे हैं। फोर्थ अगर हम बात करें, मेल और फीमेल परपेट्रेटर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी पनिश्ड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड एट लास्ट, जो कि हम देख रहे हैं कि जैसे एक महिला के पास हेल्पलाइन नंबर है 1091, उसी तरह मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक मेल को भी एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए जिससे वो अपनी बात ओपनली शेयर कर सके। तो अंत में मैं बताना चाहूंगा कि मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन सोसाइटी की वजह से वे अपने दर्द को किस तरह छिपाता है। यूं आंख भिगोया नहीं करते, हर बात पर रोया नहीं करते, तुम तो एक मर्द हो, मर्द दर्द से कराया नहीं करते।
जब आए रोने की बेला चुप होकर जख्म है सी लिया करते, यूं रोया नहीं करते। डांट झपट कर इस चंचल मन को मना लिया करते, तुम तो मर्द हो यूं आंख भिगोया नहीं करते। हर बात पर दिल छोटा नहीं करते, हर बात पर रोया नहीं करते। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो मैं अपनी टॉक को रिप्रेजेंट किया, आपके सामने प्रेजेंट किया, मैं किसी भी जेंडर या फेमिनिज्म को सप्रेस या किसी भी जेंडर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूं। फेमिनिज्म जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा, क्योंकि जिससे समाज में बराबर का अधिकार मिल सके। समाज में आज भी पितसत्ता बड़े पन्ने पे देखने को मिलती है, जिसके कारण कई महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। हमें आज समाज में जरूरत है एम्पावरमेंट की डेफिनेशन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की। हम मेल और फीमेल एम्पावरमेंट को ना सोचकर ह्यूमन एम्पावरमेंट पर जोर डालें, जिससे समाज में एक नए प्रकाश की रोशनी आएगी। So at last, let's come together and raise both hands equally to disappear the gender inequality. नर नारी है एक समान, ऊंचा नीचा कुछ नहीं। समानता के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। उलझे रहे जो अपनी श्रेष्ठता में, तो पाने को कुछ नहीं। साथ मिलके पाना होगा ऊंचाइयों को, नहीं फिर कामयाबी कुछ नहीं, नहीं फिर कामयाबी कुछ नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।